Please. Wonderful, please. Yes. Ma'am, we can start. Okay. I have got a go from my technical team. So I'm going to start. And a very warm good afternoon, good evening, and a very bright November afternoon from New Delhi. I, Dr. Syed Mubin Zehra, on behalf of Atmaram Sanatan Dharm College, I feel very happy and delighted to welcome all the participants and also our guest today and our honorable speaker today, Mr. Phonsok Ladakhi. I welcome you, sir, and all the participants today to day 9 and the 21st lecture of this 2-week online bilingual interdisciplinary refresher course on the topic Indian Folk Traditions, a Tapestry of Diversity, Bhartiya Lok Parampara ke Vividh Ayam. I'm so happy and delighted to welcome Mr. Phonsok Ladakhi from, he's joining us from Leh, Ladakh, directly from the crown of our country. And he's been so nice to take out time and join from that beautiful place, which is a part of our beautiful country. It is said that Ladakh is a place where sky meets the earth and the heart meets the soul, and where the mountains sings and the rivers dance. So before Mr. Ladakhi starts his lecture, he'll be speaking on the topic Ladakhi folk traditions and cinema. I would love and I would be very happy to introduce Mr. Ladakhi to our participants. His bio, his entire life has been an achievement. So whatever much I say will be very, very less about him. Phonsok Ladakhi ji in 1972, as a young and a determined 19-year-old from Ladakh, embarked on a remarkable journey into the world of cinema. Despite Ladakh having no cinema halls back then and only the radio for entertainment, he dreamt big. Mr. Phonsok became Ladakh's first true representative in the mainstream Indian cinema and Indian culture. From doing minor roles in Bollywood in the late 70s to becoming a household name in the 80s through Doordarshan TV shows, his journeys was a testament to resilience and passion. Mr. Phonsok's love for cinema was sparked by iconic Rajesh Khanna in Aradhana. And his dream to become a star led him to FTII. And my dear participants, I'm so happy to tell you this, that Mr. Phonsok Ladakhi was in association, and he was along with legends like Tom Alter and Benjamin Gilani. His path was not easy, it was tough. And the best part is that Mr. Phonsok never gave up, and he struggled from Bombay, which is now Mumbai, to finally finding a calling on television. He found a way to express his talent, but that's not all, my dear friends. Phonsok ji also ventured into music, becoming a pioneer of modern Ladakhi music, which I'm sure has the folk traditions attached to it. And he even composed the regimental song for the Ladakhi Scouts. Today, Phonsok ji is a teacher at FTII. He's spreading his knowledge of acting to aspiring talents. He also is a yoga enthusiast, running a yoga center right there in Leh, and wishes to establish a FTII-like school in Ladakh. His message to all youngsters is that stay on the path of truth, maintain an honest moral core, and you'll excel in your profession.
Phonsok ji's journey is a testament to following your dreams with unwavering determination and integrity. Ladies and gentlemen, girls and boys, this is an amazing short span of his achievement that I just narrated. At present, Phonsok Ladakhi ji is a faculty at FTII. He's a course director. He's a screen acting teacher. He's a seasoned yoga instructor. He's a Vipassana practitioner and singer. And I'm sure our participants would love to hear something from you in between. He uses the subconscious mind as a source of creativity and for unearthing the deepest potential. Mime and movement are his forte. He has been associated with SKIFT, SKIFT. I'm sure Sir would tell us about it. World's largest film education outreach program of FTII. He conducted courses in states like Maharashtra, Goa, Madhya Pradesh, Rajasthan, J&K and Uttarakhand. और अब आपके बीच भोंसक जी आपके और आपके सुनने वालों के बीच मैं ज्यादा नहीं आऊंगी and on behalf of Atmaram Sanatan Dharm and on behalf of my entire team and on behalf of our honorable principal sir who is always so happy to have speakers like you and talents like you, that's why we are having you from all the way from Ladakh, Professor Gyantosh Kumar Jha, our principal sir. And on behalf of him and the entire team, I welcome you. Welcome, sir. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. Dr. Said ji, बहुत शुक्रिया. Also, you are Mrs. Munawar, my friend. सबसे पहले तो तहसीन मुनव्वर सर का मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं कि उन्होंने मेरा नाम आपको सजेस्ट किया और मुझे ये मौका मिला. और आपने इतने डिटेल में मेरे बारे में बोला कि आई एम हम्बल्ड, लेकिन इट्स वेरी इनकरेजिंग. आपने जो बोला बहुत तहे दिल से बोला, and it has touched me and I'm emotionally charged now. I wonder how many people are seeing me right now. सबको मेरी तरफ से जय हिंद लद्दाख से. और वाकई डॉक्टर सईद जी ने ठीक फरमाया. Sir, if you just allow me, I'd like to mention that we have university teachers, all our university teachers here, I think I already mentioned, and they are all not from any one particular subject. They are from different fields, science, arts, commerce, law, and we have also some faculties joining from outside India. So sounds great. Yes. I'm encouraged, absolutely charged. Thank you very much for Dr. Said. Thank you very much for giving me this platform, because I'm also always looking for connectivity, you know. So I'm, as you said, that I also try to teach acting through subconscious mind. Actually, I want to start from here. What is subconscious mind, conscious mind? Right now, you can all see me, my face, and you can see through your conscious mind, my face, my hair, this is my body, and I'm talking to you. But I also have a mind behind at the backside that's called subconscious mind. Now, in the world of acting, people talk about subconscious mind. Nobody can see subconscious mind. But as an Indian meditator, there's a method to see subconscious mind. So I'll come to that later on. But nevertheless, right now, I can see only Dr. Saida's face, not others. Yes, I can see now. Who is this better? Tara N. Tara N, huh? Dr. Ramrup. Dr. Ramrup. It's Tara Yes. ji. Yes. So Yes. I can consciously see all the faces, but I cannot see your subconscious mind, right? But there's a technique to see subconscious mind also, which is again Indian 40. Only Indian have the technique to go deep into subconscious mind. जिसे हिंदी में अचेत मन बोलते हैं. एक तो चेतन होता है जो नजर आता है ऊपर ऊपर, एक अचेत मन होता है, उसमें सारे कमजोरी और ताकत छुपा होता है. तो उसके बारे में बाद में मैं विस्तार से बोलूंगा. तो डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपने मौका दिया. इंडियन फोक ट्रेडिशन, तो फोक तो अंग्रेजी शब्द है फोक, लेकिन मिलता जुलता हमारा हिंदी शब्द लोक कल्याण करना, लोक नृत्य, संगीत, लोक. तो आपने ये फोक ट्रेडिशन तो बहुत इट्स अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बट नेवरदलेस what I'm trying in Ladakh right now on my own level, that Ladakh is a huge area on the top of India, and India is full of many tradition, many
tribes. India is full of tribes. North is entire tribe. And Bastar and all this, UP, Maharashtra, Madhya Pradesh, there are tribes, so many tribes. But there's a distinct difference between we as a tribal. We are not tribal in sense like them. Ladakh is around 90,000 square kilometer and we are only 3 lakhs people, very little. And by chance, 50-50, 50 is Muslim, 50 is Buddhist, or now 60 Muslim, 50 Buddhist. And we are all very natural people. Our tradition, we are not tribe of that kind. We have certain kind of wisdom in our, I don't say that others don't have wisdom. Like you have Naga, they dance. You have Manipuris, they dance. They are in touch with the environment of Nagaland. And they have many traditions, But there is a difference between Ladakhi folk tradition, Ladakhi dance, Ladakhi music, Ladakhi mass dance, Ladakhi, anything in Ladakh, harvesting, farming. It all has a wisdom which has come from Nalanda or India. Whether you are a Muslim in Ladakh or you are a Buddhist in Ladakh, every Ladakh is a very natural man. They don't do anything unnatural. And earlier, Ladakh was a closed place because there was no road. 6 months is used to be cut off from the country. So Ladakhi lifestyle was always natural and seasonal. We have 4 distinct seasons. And for all the distinct seasons, we have distinct activities with all natural things. Like when we do harvesting, we have good luck songs. We have some astrologer coming and doing some puja, but all this scientific, nothing blind. And all our songs, Ladakhi folk songs, are all dedicated to generally to Buddhist thought of Three Ratan or the 3 Buddhas or teaching of Buddha history. So we take this blessing. And there's a great harmony between Ladakhi Muslim and Buddhist traditionally. Half of Ladakh is Islam, half is Buddhist. Religion is aside. Our culture is absolutely thick. We have common songs, common language, common behavior, everything common. If we don't tell you the name, you cannot make out whether he's a Muslim or a Buddhist. Face-wise, we are Mongolite maximum. Only when we tell my name is Phonsok, she is Hakima or Anwar, then you know he's a Buddhist or Muslim. So culturally, we are very good. And we are also a great model of harmony in the whole country, in the world. Because our religion is at home or private. When we come into social life, there's no religion. It's all culture. It's all natural. So this is something very unique about Ladakh. In fact, the world should learn a little bit from us and we should learn a little bit from the world. We have something to offer to you. That is harmony, trust. तो अभी आपने मुझे chance दिया Indian folk tradition. Now, friends, professors and teachers from around the country and some from outside, Ladakh is a really different. We are not special, but we are different. We are not superior to anyone, but we are different. We have a distinct language, our own script, which was originally Tibetan king sent one to Nalanda and he brought it back to, and it's called Bhoti language. And we have our own script. And our script is second to none in the world. In our script, we have, our folk script has 3 things. We also have the capital letter and the smaller letter and the quick, that short, shorthand writing also. So, and also one thing very distinct about Ladakhi vocabulary is, like the French, we have common language for vocabulary and honorific, तहजीब से, जैसे आंखों को हम बोलते हैं मिक, ऑनररी में बोलते हैं चंद, हाथ को बोलते हैं लकपा, ऑनररी में बोलते हैं छक. And we are really rich in our own way. And we are not proud, but we are very humble and very confident. And we are compassionate. Why? Because this forgiveness, tolerance is our character, which is our strength. So I want to start with this Indian folk tradition. In Ladakhi, we have distinct Jagar Mirix ki shol looks. We have exact translation. So like right now, I think today I saw 2 names. One was Sarvesh Asthanaji. We have an exact translation for Sarvesh. Kunji Manga, Lord of all, Sarvesh. Asthana means Donkir, Sacha Metpa.
Tronkher Metpa. Asthana is a place or no place. Asthana. So every name we have a exact Hindi name has got exact Ladakhi vocabulary. Like my name is Phonsok. It in Hindi it means sampan, complete. My second name is Siring. Se means age, ring means long. Sampan, Dhir, Ayu is my name. So Ladakhi has a lot of things to offer. Right now, I'm absolutely charged. In fact, I'm just gushing out. It's rapturing out of me. I'm not totally balanced. It's rapturing out of me. I have so many things to tell about Ladakh. So Ladakhi tradition. Now, if I talk only about music, Ladakhi music is very special, very distinct. And we have a lot of folk. We have some 3,000 folk, people. There are some people who orally can sing at least 100, 200 songs. And songs are all about nature, about river. And it has got scientific meaning. Like there's a song about four, four seasons. Now I'll sing one mukhra about a Ladakhi song about 4 seasons, but I'll sing only about the winter portion. Gunila gulunda sulumponi karpo bunitunge sanka hai gunila gulunda sulumponi hai karpo bunitunga sanka Kung maalam dape padung karla itu delavitung doricha. I'm so charged. Une hundasum. The wintry 3 months is white like a shell, and the palace of our king is looking that of like a shell. It's so white. Similarly, of green, of summer, and like that 4. So every Ladakhi song has got very and Ladakh का अपना एक बहुत खूबसूरत सुर है देखिए, और सुर टिकता है. देखिए टिकना मतलब it's a standing note. It's never wavering. थरथराता नहीं. Hunila gulunda sulumponi Karpo bunitung asang ka. Can you see? Ka is not wavering. It's like a mountain. So we also have this interaction. What we see from the mountain, we take strength from the mountain. So every Ladakhi, when I meet a very simple Ladakhi lady or farmer, she's so much connected with the soil. There's so much of confidence in her. No pride, just confidence. ये लद्दाख के कैरेक्टरिस्टिक है. तो अब हमारे लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको अभी बताया, और मैंने एक नाम और भी देखा. दैट नाम आज मैंने सुबह देखा. एक तो मैं मालनी जी का नाम देखा. मालनी को लद्दाखी में मेतोक ठेंगवा गोनपा बोलते हैं. वो जिसने हार पहना है मोतियों का. एक्जैक्ट ट्रांसलेशन है. आस्थाना वो होता है तनपुर नस्प. आस्थाना होता है जो स्टेबल होता है, जिसका कैरेक्टर स्टेबल है. मालनी आस्थाना, फूलों का हार जो बिल्कुल स्थिर है. आस्थाना स्थिर, और लद्दाखी में तनपो बोलते हैं स्थिर. तो लद्दाख में आप जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनका सबका मैं नाम बाद में एक स्कॉलर से आपको, डॉक्टर साहिबा, आपको मैं सबका नाम भेजूंगा एग्जैक्टली ट्रांसलेट करके, which will bind you all to लद्दाख. मैं अभी हुक करना चाहता हूँ आप लोगों को आपके नाम से जी. और इसी तरह मैं देख रहा था और भी बहुत से नाम है. एक तो नंदिनी साहू है, वो भी बड़ा खूबसूरत है. नंदिनी, जनरली नंदी हिंदी में गाय से रिलेटेड होता है, लेकिन लद्दाखी में नंदिनी बोलते हैं गावाश के वक्त. ए वुमेन जो ही उसको देखता है तो आप में आनंद आता है, खुशी आता है, उसको नंदिनी बोलते हैं. और साहू का मतलब लद्दाखी में है टू रिजॉइस, डिलाइट. नंदिनी साहू, ए जॉयफुल डिलाइटमेंट. तो अभी सईदा जी आपका डॉक्टर सईद का मैं कर नहीं सका क्योंकि इसे अरबिक नेम. लेकिन एक चीज लद्दाख का बहुत ये है, देखिए लद्दाख का जो ट्रेडिशन है ये सारा नालंदा से आ रहा है. हमारे लैंग्वेज पे की विशेषता ये है कि जो संस्कृत और हिंदी में नाम होता है एग्जैक्ट ट्रांसलेशन मिलता है. एग्जैक्ट
ये एक किस्म का हम ये हिंदी भाषाओं पे एहसान कर रहे हैं, हमने संभाल के रखा है। हम बिल्कुल अलग है लेकिन फिर भी एक है। तो लद्दाख का अपना एक ब्रांडिंग होना चाहिए। और मैं एक साफ स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, वैसे मैं नॉर्थ ईस्ट पूरा घूमा हुआ, वहाँ जंगल में, मणिपुर में, मिजोरम में और त्रिपुरा में, हर जगह में अपना अपना फोक होता है। लेकिन जितना लद्दाख में एक साइंटिफिक विजडम की बात करते हैं, वो लद्दाख अपने आप में एक मिसाल है। इस एक अपने आप में एक मिसाल है। लद्दाख में कोई चीज अनसाइंटिफिक नहीं है, कुछ भी जब करते हैं। जैसे डॉक्टर साहिब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पहले जमाने में ऐसा होता था, इन्वायरमेंट के भी बहुत से अच्छे होते हैं कि कहीं पे अगर चश्मा होता है तो लद्दाख में पहले कहते हैं चश्मे के सामने थूकना नहीं, इससे आपको फोड़े निकल आएंगे, विच इज वेरी ट्रू। इन्वायरमेंट खराब होता है तो फोड़ा ही निकल आता है। तो हम लोग नेचर को नहीं खेलते हैं, नेचर को छेड़ते नहीं है, ये लद्दाख का बहुत। और उसमें विजडम है, वो ऐसे अंधविश्वास नहीं है जैसे पूजा करते हैं किसी पत्थर को लाल पीला डाल के, ऐसे पूजा नहीं करते हैं। देयर हैज टू बी रीजन, क्योंकि माइंड मैटर और चित्त और काया का जो संतुलन है वो लद्दाख का कैरेक्टर है। और ये लद्दाख में तो यहाँ के फोक का, अगर मैं म्यूजिक को बोलूं तो आपको 2 घंटे म्यूजिक का बोल सकता हूँ, डांस का बोलूं तो 2 घंटे डांस का बोल सकता हूँ। लेकिन अभी आज लैंग्वेज का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो संस्कृत या पनानी बोल के जो ग्रामर था, उसी से ये तिब्बतियों ने लिया है बोटी भाषा। इट्स वेरी रिच, सेकंड टू नन इन द वर्ल्ड, हमारे इस फोक में ये है। और हमारे लद्दाख का में, क्योंकि लद्दाख सॉलिड 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेह एंड करगिल। लेह में ज्यादा मेजोरिटी बुद्धिस्ट है, करगिल में मुस्लिम्स है। इनमें जो कल्चर की जो बाइंडिंग है वो बहुत जबरदस्त है। अभी लद्दाख का एक पोर्शन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान चला गया, स्कर्दो जिसे बोलते हैं। तो स्कर्दो में सारे लोग हमारी भाषा समझते हैं, हम स्कर्दो की भाषा समझते हैं। और ना चाहते हुए आज मैं स्कर्दो वाले और मैं और स्कर्दो वाले फेसबुक में हम मिलते रहते हैं, वी स्पीक द सेम लैंग्वेज। और अभी स्कर्दो में तो ऐसा रिवोल्यूशन आ गया है, नॉट एज ए रिलीजन बट एज ए कल्चर। स्कर्दो के हर आदमी अरबिक नाम चेंज करके अभी लद्दाखी नाम रखना शुरू किया। जैसे एक मेरा दोस्त है, उनका नाम सिरिंग हसन है, हसन उन्होंने अपना इस्लामिक नाम रखा है, सिरिंग लद्दाखी रखा है, लद्दाखी लॉन्ग लाइफ। और इसी तरह मैं कहता हूँ कल्चर, फोक कल्चर लद्दाख का इतना रिच है। जैसे मैं इस बात को मैं दोहराता रहता हूँ, कल्चर इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन एनी रिलीजन। वो हमने अपने आंखों से देखा। अगर ये नहीं होता तो 1772 में बांग्लादेश बनता ही नहीं। रिलीजन में दम होता तो ये ईस्ट और वेस्ट इकट्ठे रहते। अभी दोनों इस्लामिक कंट्री है लेकिन बांग्लादेश बंगाली है, ये खान लोग अलग है। तो अभी हमारे, मैं पॉलिटिकल बात भी कर रहा हूँ इनडायरेक्टली, जो हमारे लद्दाखी लोग स्कर्दो में हैं, दे आर टेलिंग एवरी डे, दरवाजा खोलो, हमें खान कल्चर नहीं चाहिए। तो हमारे कल्चर में बहुत दम है। और हम हिंदुस्तान के, जिसको सनातन बोलते हैं, अभी ये सनातन है ना, सनातन को कुछ लोगों ने कुछ रिलीजियस कलर देते हैं, दैट्स रॉन्ग। सनातन इज नॉट हिंदू, सनातन इज ओल्ड इटर्नल लॉ ऑफ नेचर। अभी कुछ लोग पॉलिटिकली कहते हैं सनातन हिंदू है, सनातन हिंदू है। तो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान के हर 25 किलोमीटर के बाद सनातन चेंज होता है, क्योंकि हर गांव का अपना एक इष्ट होता है, अपना एक ईश्वर होता है। बट लॉ ऑफ नेचर इज सेम। Law of nature is not different in every 20 kilometers you travel in UP, everything changes. That is not Sanatan. Sanatan is law of nature, eternal law of nature. तो ये भी हम लद्दाखी लोग जीते हैं। तो मैं तो ये चाहूंगा कि आज मुझे एक मौका मिल रहा है टू टॉक अबाउट लद्दाखी फोक टू यू। मैंने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हुक करने के लिए नाम को ट्रांसलेट करके बताया, सो दैट आई वुड लाइक यू पीपुल, डॉक्टर सईद और तहसीन मुनव्वर साहब, थैंक यू। हम लोग, मुझे छोड़िएगा मत, हमसे फिर जुड़िएगा, फिर आप लोग लद्दाख पधारिएगा फिजिकली। लद्दाख हैज टू बिकम ए मॉडल इन इंडिया ऑफ सनातन, ऑफ इटर्नल लॉ ऑफ नेचर, not of Hindu or Buddhist or Jain or Sikh or Islam. Law of nature, we are human. Same feelings, same mind and matter. Achetman or Chetanman, same conscious and subconscious mind, same habit of like, dislike, and ignorance. We are all caught up in this. So Ladakh has got something to offer to the world.
कुछ हम सीख आपसे ले सकते हैं, कुछ सीख हम आपको दे सकते हैं। इट्स वेरी क्लियर। और मैं तो अपने डॉक्टर सईद जी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि एक बहुत ही लद्दाख का इनलाइटन राइटर आईएएस ऑफिसर हैं मिस्टर इस्फाइंदर खान साहब, मैं चाहता था उनको मेरी जगह लाए, तो इन्होंने बोला भाई अब तुम ही आओ, मुझे बोला। तो इस पे मुझे, इसलिए मैंने एक्सेप्ट किया। डॉक्टर सईदा, गुरु नानक जी का एक दोहा है, ये सुन लीजिएगा। बिल्कुल। थाप्या न जाए कीता न होए, आपे आप निरंजन सोए। थाप्या न जाए, सुपर इम्पोज नहीं करना, थापना नहीं, थोपना नहीं। कीता ना होए, फैब्रिकेट नहीं करना, मैनिपुलेट नहीं करना, ना सुपर इम्पोज करना, ना मैनिपुलेट। आपे आप निरंजन सोए, अपने आप जो बिल्कुल क्लियरली नेचर में होता है उसको एक्सेप्ट करो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा डॉक्टर सईद, आपने मुझे आपे आप इनवाइट किया। डॉक्टर मुनव्वर तहसीन ने मेरा नाम सजेस्ट किया और मुझे मौका मिला। सर, हमारा कॉलेज ही आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है, और वंडरफुल। हमारे जो टीम है, हमारी पूरी, हमारे प्रिंसिपल सर की और हम लोग की ये कोशिश है कि हम लोग जो फोक ट्रेडिशन है उसके कई आयाम सब तक पहुंचाएं। और हम लोग खुशनसीब हैं कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं लद्दाख से, और वहाँ के बारे में हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आप कई नई चीजें बता रहे हैं। सो दैट्स रियली नाइस ऑफ यू सर। और डॉक्टर साहब थैंक यू, इन बिटवीन आप मुझे इनकरेज कर रहे हैं। ये बात फिर से सुनिए, थाप्या ना जाए कीता ना हो, आपे आप नरंजन सो है। ना हमने सुपर इम्पोज करना है, ना हमने मैनिपुलेट करना है, जो नेचुरली होता है। आपने मुझे नेचुरली चांस दिया तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया और मैं नेचुरली बोल रहा हूँ। मैंने इन 2-3 दिनों में बिल्कुल कोई किताब वगैरह कुछ नहीं पढ़ा, मैंने अपने आप को तैयार नहीं किया। मैंने कहा आई विल बी स्पॉन्टेनियस विद यू, क्योंकि सुखन वो दिल नशी जो दिल से उठता है, कि दिल में वही बैठता है जो दिल से उठता है। जी सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और लद्दाख का ऐसा है, मैं तो स्कॉलर नहीं हूँ, मैं एक एक्टिंग टीचर हूँ। और आपने फोक ट्रेडिशन और सिनेमा की बात किया, ये इस पे मैं अब आना चाहता हूँ डॉक्टर साहिब। सिनेमा भी कोई पुराना नहीं है, 150 साल 100 साल पुराना आर्ट है। और सिनेमा में मेरा एक बेटा डॉक्टर साहिब, मेरा सिनेमा में एक एक्सपीरियंस ये है, इस पे मैं बोलना चाहता हूँ, फोक ट्रेडिशन, लद्दाखी माइंड और सिनेमा का। सिनेमा को मैं देखता हूँ और कुदरत ने मुझे ऐसा मौका दिया, 2 बार मैं ये क्या बोलता है, डायरेक्टर फिल्म फेस्टिवल के थ्रू जूरी मेंबर रहा हूँ गोवा फिल्म फेस्टिवल के लिए। तो हिंदुस्तान के कोने कोने का फिल्म देखने का मुझे मौका मिला। और चूंकि मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में पढ़ा हूँ, आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग फिल्म फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन फिल्म का भी इतना मजेदार बात यह है कि जैसे आदमी के माइंड के ट्रेडिशन, माइंड का एक स्टेट होता है, 3 ही स्टेट होता है, लाइक डिसलाइक इग्नोरेंस, लाइक डिसलाइक इग्नोरेंस। ठीक इसी तरह फिल्म में भी जो चैपलिन ने शुरू किया साइलेंट फिल्म, उस फिल्म से आगे फिल्म ने कहीं इंप्रूव ही नहीं किया, उसी चीज को लोगों ने दोहराया, उसी एडिटिंग को। तो मैं फिल्म में चैपलिन को ही हीरो मानता हूँ। और अभी जितने भी दुनिया में पिछले 100 साल में हजारों फिल्में बना, वो सब चार्ली चैपलिन की टेक्निक को थोड़ा सा दाया बाया करके इंप्रूव करके करते हैं, एडिटिंग वाइज, एक्टिंग वाइज। सो माय रियल हीरो इज चार्ली चैपलिन। एंड सिनेमा इज ए न्यू फॉर्मेट। इसमें क्लोजअप होता है, साउंड नजदीक से लेते हैं, ये टेक्निक दिन ब दिन चेंज होता है। लेकिन सिनेमा इज अबाउट हुम, सिनेमा इज अबाउट ह्यूमन बीइंग। And human being for last 3,000, 5,000, 10,000 years have the same mind, a mind which is caught up in like, dislike and ignorance. जिसको हिंदी में कहते हैं राग द्वेष मोह। किसी चीज को पसंद करना, राग करना, चाहिए, किसी चीज को नहीं चाहिए, रिजेक्ट करना। मन चाहिए कभी होता नहीं है, अनचाहिए होते रहता है, इसी में हम फंसे रहते हैं। सो सिनेमा में भी अभी ये विजडम लद्दाखी डालेंगे इंशाल्लाह। Our new generation will definitely bring this kind of filmmaking we'll do, where we'll do film of wisdom, not of reaction. नहीं तो अभी दुनिया में क्या होता है, फिल्में बनती है, एक स्टोरी होता है, इट्स ऑलवेज एक्शन रिएक्शन। उसने थप्पड़ मारा, इसने थप्पड़ मारा, इसने लात मारा, वो मारा, you roll into it and it's just a rolling of action reaction and you're caught up in that. But Ladakhi as a folk,
as a tradition, as a society, definitely has this upgraded mind how to break this reaction change. देखिए ना, अभी रिएक्शन से होता है, रिएक्शन होता है, उसमें हम फंसा रहता है, लेकिन इस चेन को तोड़ने का कहीं ना कहीं वो तो होना चाहिए, एक जंक्शन ऐसा होना चाहिए जहां पे हम ब्रेक कर सके। वो लद्दाख में है। वो भी कहां से आया है? इंडियन सनातन धर्म से आया, इंडियन सनातन विधि से आया है। तो आपके सनातन स्कूल का, यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये नाम सनातन ही मेरे लिए बहुत काफी, इटर्नल। मैं इस बात को हमेशा बहुत बोल्डली बोलता हूं कि कोई सनातन के साथ ओम शब्द जोड़ देता है, कोई योगा को भी सनातन से जोड़ देता है, ये जो बीच के ठेकेदारी आता है वो बहुत छिचलापन है। गहराई में सनातन इटर्नल है। वी आर ऑल नेचुरल पीपुल। अब इसमें हमने रिचुअल लाया है, यज्ञ का, टीके का, इसका, कपड़े का। दीज आर छिचला, ऊपर का छिलका है, और कोई हमारे ऊपर छिलका थोपे, इट्स नॉट डन। यू मस्ट नो हाउ टू गो डीप इनटू। हिंदी में एक शब्द होता है अंतर्मुखी बनना। हम इंद्रियों से बाहरमुखी बनते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, जीभ से चखते हैं, त्वचा से हम फील करते हैं। इससे बियॉन्ड सेंसेसरी जाना है, इसी को सनातन बोलते हैं। सनातन ये नहीं है नीला पीला पोंछा ये किया और आप थोप रहे हैं, थापया न जाए। थोपना नहीं है, फैब्रिकेशन नहीं करना है। तो मैडम, आपने डॉक्टर सईद तहसीन मुनाविर साहब, मुझे मौका मिला बहुत अच्छा अपने आप को इजहार करने का। हमें सनातनी बनना है, ना हिंदू बनना है, ना बुद्धिस्ट बनना है, ना जैन, ना सिख, ना क्रिश्चियन। सनातनी। व्हाट इज सनातनी? लॉ ऑफ नेचर। As you sow shall you reap, as you sow so shall you reap. Once we know that, and once we know that every human being is nothing but a combination of mind and matter, and every human being is just a combination of mind and matter, चित और काया का एक बुदबुदा है हम, और कुछ नहीं है। तो उस पे जब हम सर ये सारे जो आप जो बता रहे हैं, how does it affects, I mean, how do you use this in the film and acting technique? I mean, does this help? Yes. That's what I want. I have made few films about this also, about mind and matter. वो ऐसा होता है मैडम, अभी एक ही से में मैं समझा नहीं सकता। जैसे ऐसे देख लीजिए, आदमी जो होता है एक माइंड एंड मैटर, और इंद्रियों से आदमी बाहर वो करते हैं, क्या बोलते हैं, ये भी फिल्मों में आएगा इंशाल्लाह। मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट है जो मैं अभी बताना नहीं चाहता हूँ इस पे ना, क्योंकि थोड़ा मैं भी इनलाइटन नहीं हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कोई मेरे आइडिया को कर दे। एक्चुअली आदमी इंद्रियों से होता है। अभी फिल्म देखिए, मैं I'll give an example. You have asked me a vital question. आदमी फिल्म देखता है सिनेमा हॉल में ना, तो वहां उसका दो इंद्रिय काम नहीं करता है। देखना काम करता है, बाकी सूंघना काम नहीं करता है, चखना काम नहीं करता, वो थिएटर पे चल रहा होता है। लेकिन अगर अच्छा फिल्म मेकर वो पांचों सेंसेस पे दिखा सकता है। यू कैन मेक अ फिल्म ऑन साउंड, अ फिल्म ऑन सूंघना, फिल्म ऑन चखना, सुनना। इसी राग द्वेष में हम ब्रेकअप कर सकते हैं। नाउ द टाइम विल कम व्हेन पीपल विल मेक। और मैडम ऐसा भी होता है, जनरेशन और ये टाइम भी होता है नेचर का, कुदरत का एक अपना एक एज होता है। अभी टाइम आया ऐसे बातें खुलने का। आपने सही पूछा कि हाउ कैन वी ब्रिंग दिस इनटू फिल्म। वी कैन ब्रिंग दिस इनटू फिल्म। आई डू हैव अ स्क्रिप्ट। सॉरी सर, जैसे जो आप फोक ट्रेडिशंस बता रहे हैं, लद्दाखी फोक traditions and all, because when I was going through your bio, what amazed me was that कि जब लद्दाख में सिर्फ रेडियो चलता था, तब आपने जो है फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। So how did the Ladakhi folk traditions and how did those things, these aspects, इसने आपको कैसे मदद किया अपने फिल्म करियर में या फिल्मों में? कैसे ये लद्दाखी folk tradition and the values that you're, most important, the values that you're talking about, the folk values that you have, how did वो कैसे आपको अपने इसमें फिल्म्स में और एक्टिंग में मदद किया? थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन मैडम। जब मैं पुणे इंस्टीट्यूट पहुंचा, उसके बाद मैं बॉम्बे जैसे बड़े शहर में स्ट्रगल करने के लिए पहुंचा। तो बॉम्बे वाज सच ए ह्यूज प्लेस। वहाँ लद्दाख के ट्रेडिशन ने मुझे बचाया। ना मैंने कभी सिगरेट पिया, ना कहीं मैंने दारू पिया,
मेरे कैरेक्टर हुए, अपने लद्दाख के नेचर के कारण मैं कभी डिप्रेस नहीं हुआ। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। हमारे कई दोस्त सिगरेट पी के मर गए, कई दोस्त दारू पी के मर गए, हमने टच नहीं किया, क्योंकि एट द बैक ऑफ माई माइंड आई हैड लद्दाख एंड नेचर। मैं सिर्फ अपने पहाड़ के बारे में सोचता था तो मैं होपफुल हो जाता था। अभी देखिए, आई एम 70, आई एम स्टिल फिट। व्हाई? बिकॉज आई हैव माय ट्रेडिशन एट द बैक ऑफ माय माइंड। मैंने मैडम एक बॉम्बे में एक अजीब चीज देखा, हाउ इट हेल्प मी। कुछ हमारे दोस्त थे जो बॉम्बे में पैदा हुए, आई यूज्ड टू फील सॉरी फॉर देम, दे वर सो अननेचुरल। किसी हॉस्पिटल में पैदा हो गया, किसी बस में चल के जिंदगी उन्होंने कभी गाय नहीं देखा, दूध उनके लिए एक डब्बा है, गाय नहीं है। दूध उनके लिए सड़क पे सुबह टिंग टोंग मार के डब्बा है। एंड दे वर सो मैकेनिकल, सो जेलस। तो जब वो हमारे खामोशी देख के जेलस होते थे तो हमें पता था हमारे पीछे ट्रेडिशन है, हम नेचुरल हैं, हम नेचुरल से बच गए। आई कुड बी वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इन बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री हु वाज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय बॉम्बे चमक धमक ने हमें बिगाड़ा नहीं, बिकॉज एट द बैक ऑफ माइंड आई वाज अ नेचुरल मैन। इट्स वेरी। अब और एक मिसाल देता हूँ मैडम। आज से 50 कोई ऐसा गाना, फोक गीत, कोई ऐसा गीत जो आप बहुत गुनगुनाते थे जब आप बॉम्बे में थे, कोई बिल्कुल लद्दाख का बिल्कुल कुछ अगर बिल्कुल हम लोग को बिल्कुल सुनाए बिल्कुल हमारे बिल्कुल पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल को। बिल्कुल। एक तो मैडम फोक टेल्स में हमें याद आता था, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ कर्मा, ये हम माँ बाप से सुनते रहते। एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में आज से 50 साल पहले H.D. बर्मन आया था मणिपुर से, नौशाद साहब आए थे यूपी से, है ना जी। इसी तरह दिलीप कुमार साहब आए थे कराची से, पाकिस्तान से। नेचुरल लोग आए थे तो नेचुरल फिल्म बनता था। पुराने फिल्म देखी, कितना नेचुरल संगीत है। आजकल सारे मैकेनिकल बनता है। बच्चे सब गाड़ी में पैदा हो गए, ट्रक में हॉस्पिटल में पैदा हो गए, ट्रेन में जवान हो गए, उन्होंने नेचर देखा नहीं। और अब बॉम्बे के बच्चे बोलते हैं कि हम हिंदुस्तान को जानते हैं, वो हिंदुस्तान को नहीं जानते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव folk kind of people who are born and brought up into nature. They should come to Bombay and they can offer things. A city can't offer us anything but all negativity. और आप देखिए दुनिया में जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री जो मशहूर है, वहीं सबसे ज्यादा वायलेंस होता है। क्यों? क्योंकि सब मैकेनिकल है लाइफ। तो मैडम फिल्मों में ये लाना है हमने। अब लद्दाख में तो डेफिनेटली एक ग्रुप, यही हम ट्राई कर रहे हैं। हम योगा सिखाते हैं, ट्रेडिशन सिखाते हैं बच्चों को। हम बोलते हैं ABC सीखो, काखा मत छोड़ो। बिजनेस करो लेकिन अपने सामान मत बेचो। डांस सीखो, रॉक एंड रोल, लेकिन अपना फोक डांस मत छोड़ो। ये मेरा एक गाना है मशहूर यहाँ। तो हम लोग अवेयरनेस देते हैं। यही लद्दाख की फिल्म इंडस्ट्री, इंशाल्लाह बाद में हम ऐसे फिल्म Can बनाएंगे। can we hear that? यस। Sanchig no dang no mogo, a changing stam soon. ABC love का खामा पांग, इसका मतलब है ABC खो का खाना छोड़ो, ABC love का खामा पांग, का खा पुंगसोस दुक्तों सिन है। If you live Kaka, you will have no wisdom. Rock and roll says you says mapa, नाचो मगर ट्रेडिशनल डांस मत छोड़ो, उससे आप ग्रेसलेस हो जाओगे। सो आई हैव सम वेरी पॉपुलर सॉन्ग वेयर आई गिव अवेयरनेस टू आवर पीपल एंड दिस अप्लाइज टू द होल कंट्री। आप देखिए यूपी से जब आते हैं तो यूपी का कितना खूबसूरत फोक होता है। तो हिंदुस्तान इतना खूबसूरत कंट्री है। तो एक तो जो शहर के बच्चे हैं, शहर वालों को ये गलतफहमी से दूर रहना पड़ेगा कि वो हमसे तेज है। वो कहीं तेज नहीं है। हर शहरी बच्चे को, मेरे कई दोस्त हैं जो इमोशनली बहुत वीक होते हैं, है ना, जो बसों में चले, उनमें जलसी। हम जब वो हम पे जलस होते तो हमें तरस आता था। हम गुस्सा नहीं खाते थे, हम मुस्कुरा के उन्हें माफ कर देते थे। ऐसे कई दोस्त हैं। और अगर मेरे कोई बॉम्बे के दोस्त लोग सुनेंगे, वो जानते भी मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। तो हम लोग जो हिंदुस्तान के छोटे छोटे गांव में पढ़े हैं, हरियाणा में, यूपी में, त्रिपुरा में, केरला में, जिन्होंने गांव का लाइफ देखा, फोक जिया, फोक हमारे खून में होगा। वी हैव समथिंग टू ऑफर टू द वर्ल्ड थ्रू सिनेमा ऑल्सो। और सिनेमा में ये विजडम आना चाहिए। नहीं तो सिर्फ रिएक्टिव फिल्म बनाओ, एक गोली उठाया और
सारे नेगेटिविटी को आप लोग ग्लैमराइज करते हैं, सटल चीजें जो छोटी छोटी बातें हैं, नाजुक बातें, उसको फिल्म में। और लद्दाख में मैडम वी आर डूइंग इट वेरी वेल। इनफैक्ट तहसीन मुनावर साहब तो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। सर हमने एक चीज ये जानना चाहूंगी, मतलब मे बी आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, कि जो आपके जो लद्दाखी फोक ट्रेडिशंस हैं, जैसे आप बता रहे हैं, जैसे आपने ये इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग उसको किया, तो किस तरह से जो नए आजकल के एक्टर्स हैं, व्हेन यू आर टीचिंग इन FTII, तो इसको आप किस तरह से फोक को यूज करते हैं उनको समझाने में, जो आप बता रहे हैं? थैंक यू मैडम। जी सर। एक तो जब मैं सिखाता हूँ बच्चों को, सबसे पहले मैं सिखाता हूँ, मैं तुम्हें सिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको अपने अचेत मन में जो गुथली फंसा हुआ है उसको अनफोल्ड करना सिखाता हूँ, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योगा। You have to go deep inside yourself and untie your complexes. It's a technique. तो ये पूना इंस्टीट्यूट ने मुझे ये चांस दिया और मैंने अपने आप को साबित करके दिखाया कि हाउ टू गो डीप इनसाइड एंड लुक इनटू योर ओन डिफाइलमेंट, कहाँ कहाँ आप में कॉम्प्लेक्स, उसको अनटाई करना। यू हैव टू नो योरसेल्फ, यू डोंट हैव टू नो आउटसाइड। आपको अंतर्मुखी बनना है, बाहरमुखी नहीं बनना है। पूरा दुनिया बाहर मुखी हुआ है, मैराथन करते हैं, हम बाहर भागते हैं। एक्चुअली हम लोग इनर मैराथन करना चाहिए हमें। तो मैं यही इनर मैराथन में सिखाता हूँ, थोड़ा बहुत सीखता भी हूँ और लोगों से लेता भी हूँ। तो आपके क्वेश्चन बहुत वैलिड हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। आई टीच हाउ टू गो इनटू डीप इनटू द सबकॉन्शियस माइंड एंड हाउ टू टेक डिफाइलमेंट आउट। ये एक टेक्निक है मैडम, इसके लिए क्लास लेना पड़ता है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन बिकॉज words are very limited. Words can never express the exact feeling. जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे, ये मेरे हाथ में ये है, मैं अभी चाय पीऊंगा, तो मैं एग्जैक्ट फीलिंग बता नहीं सकता हूँ। गरम है बोल सकता हूँ, इतना गरम है, मीठा है, एग्जैक्ट नहीं पता। फीलिंग, वर्ड्स आर लिमिटेड। अगर आप साइलेंटली मुझे अभी थोड़ा देखेंगे तो आप मेरे में एक समता देखोगे, ये बात है। और मैं बता नहीं सकता हूँ मैं कितना पीसफुल फील कर सकता हूँ। एक्सपीरियंस इज अबव ऑल दिस वर्ड्स। यही फिल्मों में मैं दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास ऐसे स्क्रिप्ट है, इंशाल्लाह एक दिन मौका मिला तो आएगा, क्योंकि यू कैन नॉट एक्सप्रेस एग्जैक्ट फीलिंग इन वर्ड्स। यही अनफोल्ड करना है। हर आदमी को योगी बनाना है, हर आदमी को खुद को पहचानना है। और अंग्रेजी में तो कहीं लिखा भी है, नो दायसेल्फ, नो दायसेल्फ लिखा होता है ना, खुद को पहचानो। और उर्दू में एक शब्द है, इफ यू नो, बातिन और जाहिरी। जाहिरी होता है जो नजर आता, बातिन होता है अंदर। तो हमें बातिन बनना है, और सिनेमा में भी बातिन लाना है, सिर्फ शोर गुल नहीं लाना है। कभी कभी आप देखिए बंगाली फिल्म में साइलेंट शॉट होता है, इट स्पीक्स अ लॉट, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन इट। और कभी कभी आप इतने बातें करते हैं, कुछ उसमें एसेंस ही नहीं होता, इसलिए कि पानी बुलबुला रहा होता है जिसमें कोई एसेंस नहीं है। एसेंस को क्या बोलते हैं, सार बोलते हैं हिंदी में। सार की बात करना है। और देखिए विजडम 3 किस्म का होता है, ये भी हिंदुस्तान का एक्सप्रेशन है। इंफॉर्मेशन, कंटेम्पलेशन, एक्सपीरियंस। अभी मुझे जो थोड़ा बहुत आता है मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आप उसको देखोगे, फिर आप कंटेम्पलेट करोगे कि ये ठीक बोल रहे हैं या गलत, उसके बाद एक्सपीरियंस करोगे, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये लद्दाख के कैरेक्टर में, फोक में ये सब है, सुनना और सोचना, फिर उसका तजुर्बा करना। तो लद्दाख के ट्रेडिशन में ये है, यही हम लद्दाखी फिल्मों में ऐसे गानों में ला के हम चाहते हैं कि अभी हमारे तो मैडम एक मेरा ये कोई प्राउड नहीं है, एक जिद है, एक कमिटमेंट है कि वी एज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ लद्दाखी are second to none in the world. We're a small community, but we have something to offer to the world. वो ये कि चित्त कैसे आपका फंक्शन हो रहा है, माइंड कई लेवल पे, कॉन्शियस लेवल पे, सब कॉन्शियस लेवल पे, डीप लेवल पे, डीपर लेवल पे, सटल लेवल पे, सटल लेवल पे, सटलेस्ट लेवल पे। जिसे कहते हैं ना, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, ग्रॉस को बोलते हैं स्थूल। स्थूल चित्त को पहचाना, फिर सूक्ष्म चित्त को, फिर सूक्ष्म तर को, फिर सूक्ष्म तम को। ये लद्दाखियों में है। तो अभी मैं जुबान से आपको बोल रहा हूँ, और अगर मेरा चेहरा भी क्लोज अपली आपको नजर आता तो थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं मैं ठीक बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। Whatever I am talking, I am not talking anything borrowed. सुनिए, वो किस्सा नहीं सुना रहा हूँ,
ये मोर और लेस मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है इन बातों का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। और मैं बिल्कुल प्योर भी नहीं हूँ, ये नहीं बोल सकता हूँ कि कॉन्फिडेंट हूँ, मैं नर्वस भी हूँ, क्योंकि आई एम नॉट 100% कॉन्फिडेंट। आई एम नर्वस एट दिस टाइम राइट नाउ, but my nervousness is with awareness, and when you are aware, everything is natural. Awareness leads to liberation. जो सचेत होता है, जो सजग होता है, वही पार निकलता है। मूंद के जो होता है वो हमेशा गिरता है। तो लद्दाख के फोक में सजग सचेत बहुत है, बहुत सजग है लद्दाखी माएँ, हमारे लेडीज जो जमीन के साथ जुड़ा होता है, बहुत सजग सचेत होते हैं। तो यही हम सिनेमा में लाना चाहते हैं। नहीं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, सिनेमा जो चैपलिन ने साइलेंट फिल्म बनाया, वही अभी भी बन रहा है, वही एडिटिंग, वही मरना, वही छोटा सा उसी चीज को खिलवाड़ करते हैं, उसी टेक्निक को। लेकिन मैं ये समझता हूँ मैडम, लद्दाखी फोक ट्रेडिशन और लद्दाखी सिनेमा को ज्वाइन करके इंशाल्लाह वी विल बी शोइंग गुड फिल्म्स टू द वर्ल्ड, और लद्दाखी बच्चे बने। अभी क्या हो रहा है मैडम, बॉम्बे से, अमेरिका से पीपल कम फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड टू शूट टू लद्दाख। व्हाट they shoot the external thing of mountain, of lakes, and our dress, which is just external and sensual, senses के साथ related. But जो inner quality of लद्दाख है, वो experience के साथ सिनेमा के टेक्निक को यूज करके हम लोग इंशाल्लाह बाहर लाएंगे, यही हमारी कोशिश है। तो बाकी मैं भी रिपीटेटिव हो रहा हूँ, नेवरदलेस बस मुख्तसर ये है कि हम अंतर्मन की गहराई में जाके बाहर ये, और जो आप हिंदुस्तान में जी जी एक आप बात मैडम, नहीं, मैं आप आपके थ्रू नहीं, आप जी, प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। जो इंडिया में अभी एक दौर चल रहा हो ना, जो सनातन को कई लोगों ने अपना बनाया, मैं उसके लिए जंग लड़ता हूँ, क्योंकि सनातन इज नॉट ए रिलीजन ऑफ समवन। ये ठेकेदारी हम किसी को नहीं देना चाहते हैं, इसका मैं बहुत क्लियर हूँ। एंड आई एम ए बोल्ड फाइटर, somebody has to speak it out, ऐसे ही सरसरी हाँ में हाँ मिलाना नहीं है ना जी। जैसे आपको मैं एक शब्द समझाना चाहता हूँ, ये आपको सुनना पड़ेगा जी। अभी। एक मिनट, यहाँ पे और भी एक मैंने एक बहुत अच्छे स्कॉलर से कुछ लिखवाया था। जस्ट गिव मी 1 minute प्लीज। We would also love to hear from you, sir. जी, We would love to hear some folk music. So, somebody has any question, please ask me, because yes, we are having some questions also coming. We have a session after you finish speaking. We have question session, well and देखिए जी जी but participants are really enjoying something new, some new music, something that you gave them, because for us listening to Ladakhi folk is very rare. So if you have something special that you want us to know, and we are all in the teaching profession, because आपने inner mind और subconscious mind की बात की, और ये सब teachers हैं, हम लोग तो देश का future बनाते हैं। तो is there something which you would like us to know from your folk traditions that would help us as as educators? From our folk tradition, I would like to suggest to every teacher in the world to meditate and know thyself. If somebody knows himself or herself, then he can offer that to others. क्योंकि एक मिसाल दूंगा, उधार कौन देता है? उधार वो देता है जिसके जेब में पैसा होता है, और विजडम वो दे सकता है जिसने विजडम एक्सपीरियंस किया है। तो every teacher must know himself, and they should have certain amount of realization. उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगना चाहिए कि कंपैशनेट है। टीचर डंडा लेके आने वाला नहीं लगना चाहिए। टीचर के अंदर घुसते ही क्लास में पीस आना चाहिए। टीचर की पर्सनैलिटी को ऐसे डेवलप करना चाहिए। हर टीचर को सुबह 10 मिनट कंटेम्पलेट करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है। और मैं एक चीज तो मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि आपने पूछा, तो हिंदुस्तान में अभी एक विपासना मेडिटेशन बहुत मशहूर हुआ है, 10 दिन का फ्री विपासना, वो करना चाहिए। यू मस्ट नो योरसेल्फ। इफ यू नो योरसेल्फ, यू कैन वाइब्रेट। हर टीचर को बिल्कुल कंपैशनेट बनना चाहिए। ए टीचर शुड बी लाइकेबल।
टीचर की पर्सनैलिटी का वाइब्रेशन क्लास में आते ही पता लगना चाहिए, नॉर्मल आदमी आया, कंपैशनेट आदमी आया। टीचर तो क्या बताएं, वो आदमी को पंख लगा देता है। ए मैन शुड बी इंस्पिरेशनल। हर टीचर का एक ही चैलेंज है। फिर गुरु नानक का गुरबानी मुझे याद आया। गुरु नानक ने एक जबरदस्त गुरबानी बोला है, क्यों सचारा होए क्यों कूट टूटे पाल, क्यों सचारा होए, कैसे मैं ऑनेस्ट बन सकता हूँ, क्यों सचारा होए क्यों कूट टूटे पल, यानी कि मेरे अंदर जो कूड़ है नेगेटिव वो कैसे खत्म हो जाए। ओनली देन यू कैन वाइब्रेट, यू कैन सॉर्ट ऑफ you can look peaceful. A teacher must be very lovable person, and that has to be cultivated. So there are So, some questions coming, if you yes, allow me. please. I want some question, please. Yes. Because you asked me how a teacher should be. Yes, A teacher should be yes. No, compassionate. sir. Compassionate. Thank you. I think that was a very valid point, and we really take that from you, sir. क्योंकि आपका इतना vast experience है, आप इतना meditation, spirituality, you've been associated with this art, and you're living in such a beautiful place that I mean, in Delhi, I can't imagine doing meditation as you will be doing meditation in Ladakh. So you're such an inspirational person. So मैं आपको question share कर रही हूँ. This is from the participants, and again, the participants are requesting for you to share some good music and some folk songs. But Yes. This question is from Mr. Anil Kumar. He's an assistant professor from Jaunpur. See, this is the magic. Jaunpur is close to Banaras. Yes. So his question is, respected sir, please share your experience about folk as a conversational tool of biodiversity. How folk is a conversational tool of biodiversity. So how can folk be used to conversate and understand the biodiversity of the region or of the place? How can it be used to help in biodiversity? Well, madam, to be honest, ये biodiversity जो है वो शब्द मुझे समझ में नहीं आया। जो हमारे आसपास की जो नेचुरल चीजें हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसमें आप उसको कैसे, मैं एक मिनट सर मैं आपको बताती हूँ। आई जस्ट गो टू द क्वेश्चन, हाउ इट्स अ कॉन्वर्जेशनल टूल ऑफ, कैसे हम जो फोक है उसको, जो हमारे एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसके साथ हम कैसे कॉन्वर्जेशन के लिए यूज कर सकते हैं। मे बी ही इज ट्राइंग टू आस्क दैट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट थ्रू फोक कल्चर और फोक ट्रेडिशन। That is what probably he's trying to ask. देखिए ऐसा है, जैसे इन्होंने सवाल पूछा तो अब मुझे जवाब देना ही पड़ रहा है, तो लेकिन मैं अपने आप को ये सवाल एक्सेप्ट करके मैं अपने अंदर खोज रहा हूँ। ये पूछ रहे हैं एक्चुअली फोक क्या है। फोक एक ट्रेडिशन है, हिंदुस्तान के कोने कोने में अपना अपना फोक है, हर एक गांव में अपना अपना एक विजडम है। उस विजडम को हमने अप्लाई करना है डे टू डे, और बहुत सिंपल है वो। तो आप अगर ज्ञानी है तो हर चीज को आप ज्ञान से उसका परतें खोलेंगे, है ना। तो दिस इज समथिंग टू बी प्रैक्टिस, नॉट टू बी एक्सप्लेन। ये तो ऐसा है कि शून्यता बताओ, शून्यता को आप शब्दों में बता नहीं सकते हो। फोक को डेली बेसिस पे कैसे अप्लाई करेंगे, दैट इज समथिंग यू शुड नो इट। यू शुड, आपको उसमें पारंगित होना पड़ेगा खुद ही। मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट तौर पे मे बी समझा नहीं पाए, मैं इसको आपसे थोड़ा सा अलग तरह से पूछूंगी। जैसे आप बच्चों को एक्टिंग पढ़ाते हैं FTII में, तो आप लद्दाख के किस फोक ट्रेडिशन को या फोक कला को यूज करते हैं उनको एनरिच करने में? So is there something that you take from the environment of Ladakh tradition? yes. Yeah, so maybe I take from, मैडम देखिए लद्दाख का ऐसा है कि लद्दाख में हर किस्म का एक विजडम है, खेत का अलग, गाने का अलग, पानी का अलग। लेकिन हमारा हाईएस्ट फॉर्म है माइंड और मैटर के फंक्शन के बारे में। तो मैं हमेशा लकीली मैं सबसे ऊपर वाली चीज को लेता हूँ, माइंड मैटर। माइंड और मैटर से कैसे किसी चीज को एनालाइज करना है, माइंड कैसे फंक्शन हो रहा है, उस हिसाब से मैं एक्टिंग सिखाता हूँ। और एक्टिंग होता क्या है, एक्टिंग यही होता है कि माइंड में जो चीज आप फील करते हैं वो आप एक्सप्रेस करते हैं। बॉडी, स्पीच, लैंग्वेज, चित्त, काया, वाणी, तीन ही चीज है जिसको आप हैंडल करते हैं।
तो मैं लद्दाख का यही माइंड एंड मैटर की साइंस को लेके लोगों को सिखाता हूँ, अनफोल्ड कराता हूँ, इनकी जो अनटाई करना, जिसको आप बोलते हैं ना गुठली खोलना, अपने कॉम्प्लेक्सेस के, अपने फियर के, और बखिया एक्सेप्ट करना सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं एक्सेप्ट करना सिखाता हूँ। जैसे अभी मुझे ये सवाल समझ में नहीं आया, तो मैंने एक्सेप्ट किया, भाई मुझे सवाल समझ में नहीं आया। जी, ये है लाइफ को एक्सेप्ट करना एज इट इज, टू एक्सेप्ट थिंग्स एज इट इज, नॉट एज यू वांट इट टू बी। अभी वंडरफुल, आपने मुझे ये चैलेंज दिया, मैंने इसको एक्सेप्ट किया, मैं इसको अवॉइड नहीं किया। वंडरफुल। हाँ, सो मेरा ट्रेनिंग ये है अपने बच्चों को, दूसरे के बच्चों को लाइफ में समता और बैलेंस से बैठ के फेस करो। मौत आया तो मौत को फेस करो, एग्जाम आया एग्जाम को फेस करो, और उसी से आपकी गुठली खुलेगी। जो ही आप पलायन करेगा, आप डरपोक बनेंगे, एक्यूमुलेट करोगे, अचेत मन में आपके सारे वॉल्केनो जमा हो जाएगा, वो आपको डिप्रेस करेगा। हार्डेस्ट थिंग यू टू फेस इन लाइफ, ये लद्दाख के माइंड एंड मैटर का ये टेक्निक मैं बच्चों को सिखाता हूँ, टू फेस लाइफ एज इट इज। हर सुबह जब आप उठते हैं, फेस करना सीखो। हम पलायन करते हैं। अभी देखिए, आपकी एक बात को मैं काउंटर करना चाहता हूँ। आपने अभी फरमाया कि भाई फुनसुक तुम कितने लगे हो, लद्दाख में मेडिटेशन करते हो। मेडिटेशन तो हमने बॉम्बे में किया, तवाइफ देखा, तवाइफ के पास नहीं गया, शराब मिला, शराब नहीं पिया, सिगरेट मिला, सिगरेट नहीं पिया, भूखा बैठा, भूख एक्सपीरियंस किया। वंडरफुल। I like challenges. I don't like this safe zone. तो आप वंडरफुल वंडरफुल बहुत खूबसूरती से आपने इस बात को रखा। तो देखिए, एक और सवाल आ रहा है। आई थिंक आई बिफोर आई गो विद माय क्वेश्चन, आई जी वुड जी जी लाइक जी। टेक द पार्टिसिपेंट्स। ये डॉक्टर संजय वाघमारे जी हैं और ये महाराष्ट्र से हैं। हाँ, इन वाघमारे, जय हिंद, वाघमारे कसा काय बरा। तो जी, सो ही इज आस्किंग कि लद्दाख के नाट्य परंपरा के बारे में बताइए। कोई ऐसी नाट्य परंपरा जो आपको लगता है कि यू नो मे बी आपने फिल्म इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस किया हो, या आपको I've लगता है understood. हाँ। ओके ओके सर, प्लीज। I've understood. I'll answer this, वाघमारे जी, मैं आपको जवाब दूंगा। सबसे पहले तो वाघमारे जी, मैं आपको अपने तरफ से खुश करूंगा। मेरे में बहुत से अगुण है और कुछ सद्गुण भी है। सारे सद्गुण मैंने महाराष्ट्र में डेवलप किया। महाराष्ट्र ने मुझे बहुत कुछ दिया। तो मेरा जन्मभूमि लद्दाख है, कर्म भूमि और धर्म भूमि महाराष्ट्र है। जय महाराष्ट्र, आई लव महाराष्ट्र। और आपका क्वेश्चन ये है कि लद्दाख के नाट्य परंपरा में क्या होता है। लद्दाख में सबसे ज्यादा नाट्य परंपरा जो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह एस्टेब्लिश है, वो है मास्क डांस ऑफ लामास। हमारे लामा जो होते हैं, भिक्षु होता है, साल में हर मंदिर में 2-3 दिन का मास्क डांस होता है। और ये भी हिंदुस्तान के नीचे से आया हुआ, नालंदा से आया हुआ है। लामा लोग मास्क पहन के डांस करते हैं। वो लद्दाख के लाइफ को हेल्प करता है। जैसे जब एक लामा, मैं छोटा छोटा मोटा मोटा स्थूल एग्जाम्पल दूंगा। एक मास्क पहन के आता है अवलोकितेश्वरा का, यानी कि कंपैशन का, दया का। वो मास्क पहन के आते हैं। तो वो जो लामा, जो डांसर होता है, कम से कम 1 महीना वो मेडिटेशन करता है, अपने चित्त के विकारों को कम करता है, खुद को शुद्ध करता है। और जब अंतर्मन की गहराई में जाके वो फलाने दिन के लिए जब तैयार होते हैं, तो वो मास्क पहनता है, वो कपड़ा पहनता है। और जब वो उस कोर्ट यार्ड में डांस करने के लिए निकलता है, ये देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो उसमें इतना प्योरिटी होता है। मास्क उसने कंपैशन का पहना होता है, और पूरे वातावरण में उसका एक प्रभाव होता है। उसके नाच में एक ग्रेस होता है, कंपैशन, उसका हाथ ऐसे चलता है, आशीर्वाद यूं देता है। तो लोगों में एक श्रद्धा होता है और इनमें एक इम्पैक्ट होता है। यूं लद्दाखी नाट्य जो होता है, जो एक्टिंग का ये जो परफॉर्मेंस, ऐसे सोसाइटी को साइकोथेरेपी देते हैं। जैसे वाघमार्गी जी, एक बात सुनिए। लद्दाख के कोर्ट यार्ड में कम से कम 2000 आदमी लोग ऐसे बैठे होते हैं, और एक मास्क डांस आता है। तो जब उसको श्रद्धा से देखते हैं, तो वहां मैनिफेस्ट होने लगता है। तो लद्दाख का जो परंपरा का डांस का ये है, एक तो ये मास्क डांस का हुआ। वाघ मेरे जी,
एक तो ये मास डांस का है सर, डिस्टिंक्ट स्पिरिचुअल डांस, इसका इफेक्ट। और डॉक्टर साहिबा और एक मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ, लद्दाख के फोक डांस का इफेक्ट। लद्दाख का फोक डांस मैं करता हूं तो मैं आपको एक्सपीरियंस सुनाता हूं। लद्दाख में जब फोक डांस करते हैं तो नक्कारा और शहनाई बजता है। तो जब हम लोग नक्कारा और शहनाई बजाते हैं उसी पे हमारे स्टेप्स चलते हैं, और स्टेप्स अवेयरनेस के साथ चलते हैं, सजग सजग से, ऐसे खोया हुआ नहीं, ऐसे पागलों के डांस नहीं करते हैं, जैसे डांस मॉडर्न डांस करते हैं ऐसे ऐसे करते हैं ना। तो अवेयरनेस के साथ, ये हाथ उठ रहा है, इसके उठने का सजग सचेत, every moment is with awareness. When you are aware, then your mind and matter is synchronized, aligned. When your mind and matter is synchronized, when it is aligned, it looks beautiful. तो लद्दाख के जो डांस होता है उससे जो डांसर होता है वो फील करता है, देखने वाला उसका मैनिफेस्टेशन देखते हैं। और ये हिंदुस्तान के सारे जितने भी हमारे साउथ के जो डांसेस हैं, कथकली, ये जितने भी, दे आर ऑल फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, दे डू विद अवेयरनेस। अभी मैं वाघमेरे जी इस पे आपको एक जोक सुनाना चाहता हूँ, ये सुनाने बिना मैं रह नहीं सकता हूँ। मैंने एक फिल्म देखा था असरानी साहब का, उसमें वो प्रोड्यूसर एक लड़की को लाता है, क्लासिकल डांसर को, वो लड़की आके क्लासिकल डांस सिखाती, तो असरानी बोलता है भाई डांस दिखाओ, डांस दिखाओ, तो लड़की क्लासिकल स्टेप्स दिखाती है। तो बाद में असरानी क्या करता है, एक फ्रिज से आइस क्यूब निकाल के लाता है, उस लड़की की टी शर्ट में डालता है, वो ऐसे ऐसे करते हैं, बोलता है हाँ ये डांस चाहिए। क्योंकि कैरेक्टर लेस है ऐसे ऐसे करना, नहीं तो कथकली में एक एक स्टेप, एक एक हाथ का मुद्रा कितना मीनिंगफुल है। तो ये हमारा जो इंडिया का, लद्दाख का जितने भी नाट्य जो आप बोल रहे थे परंपरा, दे आर फुल ऑफ विजडम, दे ऑफर यू समथिंग। परफॉर्मर को अपने जगह पे वो इनलाइटन करता है, देखने वाले को अपने जगह मैनिफेस्ट करता है। बस लद्दाख का यही है, मुख्तसर मोटा 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 दोनों चीज में अवेयरनेस होता है। वाघमारे जी, जय हिंद। नहीं, the Wagpare is conveying his thanks. There are some more questions coming. हाँ, the Wagpare जी ने धन्यवाद भेजा है। एंड सर मेरा एक सवाल था, आपने बिकॉज फोक ट्रेडिशंस जो होते हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा जेंडर महिलाओं से रिलेटेड सवाल है कि अक्सर हमने देखा है कि जैसे आपने भी ऐसे समय में वहां से आप निकल के आए, और तो इज देयर एनी स्पेसिफिक फोक डांस दैट इज ओनली स्पेसिफिक टू women, only women perform those dance in Yes, and your yes, region? Because yes. I mean, I would love to know that, और उसका क्या historicity है, उसका क्या tradition है, if you could just tell us. अगेन मैडम, जैसे मैंने आपको बोला, बेसिक पे मैं आऊंगा। लद्दाख में अवेयरनेस माइंड मैटर के कॉम्बिनेशन से ही काम करते हैं, कोई चीज मूंद के नहीं करता है अनअवेयर, ये लद्दाख के हर एक्शन का है। तो लद्दाख के विमेन डांस में एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग ये होता है, अगर आप विमेन डांस देखेंगे तो हाथ को लेडीज सारे यूं पकड़ते हैं, यूं, फिर यूं करते हैं, फिर यूं करते हैं, वो इनका माइमिंग है। ये फूल पकड़ा, ये फूल तोड़ा, और ये नेचर को फूल ऑफर करते हैं, ये इनका जेस्चर होता है। ये फूल पकड़ा, ये फूल तोड़ा, ये फूल ऑफर किया। तो ऐसे कुछ मुद्राज हैं जो लद्दाख के सिर्फ लेडीज करते हैं, जेंट्स नहीं करते हैं। और लेडीज के डांस में भी यही होता है, वो अवेयरनेस के साथ करना होता है। बल्कि जब हम छोटे थे, हमारे माँ वगैरह हमें जब कभी कभी डांटते थे तो यही बोलते थे, टनबाज तोरा, मीन्स भटक गए हो, भटकना नहीं चाहिए। जैसे मैं रास्ते पे जा रहा हूँ तो गिर गया, तो मेरी माँ ये नहीं बोलेगी क्यों गिरा, बोलेगी भटकते हो, भटकना नहीं चाहिए। लद्दाख के हर डांस में भटकना नहीं होता है, अवेयरनेस होता है। और ये अवेयरनेस मैं समझता हूँ नालंदा से आया, योगा से आया, मेडिटेशन से आया। और मैडम मेरा ये भी मानना है, पूरे दुनिया के लिए फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल अवेयरनेस हिंदुस्तान का काम है। आप देखिएगा, मैं फिर एक मिसाल देना चाहता हूँ कि दुनिया में मोटे मोटे तौर पे हर जगह कल्चर है, वेस्ट का अलग, ईस्ट का अलग, ईस्ट में सारा हिंदुस्तान आता है। तो हिंदुस्तान का भी अक्सर आप देखिएगा
अंतर्मुखी होना हिंदुस्तान के पत्थरों पर है। 10,000 साल पुराने जो पत्थर देखते हैं उस पे लोग ये मुद्रा में बैठा होता है, आंखें बंद, अंदर देख रहा है। तो ये अंदर देखना हिंदुस्तानियों का ब्रांडिंग है। जी तो हाँ, और इट हैज नथिंग टू डू विद हिंदू मुस्लिम और एनीथिंग। और अभी इस्लाम भी यहाँ आया हुआ है। फैक्ट तो ये है कि मैं तो ये कहता हूँ आवर इंडियन मुस्लिम आर द बेस्ट मुस्लिम इन द वर्ल्ड, नॉन वायलेंट, बेस्ट पीपल। also sir, हाँ tell me one thing. I'm also intrigued to know, मुझे ये जानने की थोड़ी सी इच्छा हो रही है कि आमतौर पे शादियां जो होती हैं उसमें कई फोक ट्रेडिशंस यूज होते हैं। तो कोई ऐसा खास जो जैसे अभी आपने वो मुद्रा वाला बताया, तो इट टुक मी टू द जो अजंता की जो एक फेमस अप्सरा का जो एक वो होता है, उसकी भी कुछ लो टेकिंग द लोटस इन हर हैंड, समथिंग सिमिलर टू दैट, यू नो। सो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कोई ऐसा है कोई फोक ट्रेडिशन या कोई ऐसा कोई डांस या कुछ आप गुनगुना के भी सुनाइए हमको जो मैडम देख लीजिए, आपको मेरी फेस जरा क्लोज में देखिए, मैं कितना टच हो गया, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग विच इज सो यूनिक इन द वर्ल्ड, विच इज इन लद्दाख। थैंक यू सर, थैंक यू। दिस इज यूनिक, आप भूल नहीं पाओगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ। लद्दाख में जब किसी छोटी जवान लड़की की 18 साल, 19 साल, 20 साल बच्ची की जब शादी होती है तो बड़े धूमधाम से होती है, रिचुअल सब होता है। लेकिन एक सफेद कपड़ा उसके सर पे ऐसे डाल के यहाँ पे गोल गोल बांध के बेचते हैं। वो ये बोलता है कि उसी घर में जाके वहां निभाओगी, और वो अपना कफन लेके जाती है साथ। ये लद्दाख का ट्रुथ है। आप फिर से सुनिए, जिस रात को लड़की को लेके जाते हैं तो उसके पूरे शरीर पे एक सफेद कपड़ा भी पहनती है वो, जिसका यहाँ से थोड़ा बांधते हैं, यहाँ से बांधते हैं, जेवरात के ऊपर ले जाते हैं। वो एक विजडम का, दैट तुम उस घर में जाओ, वहां लाइफ जियो 100 साल, 50, 70, 80 साल, एंड वही उसका कफन होता है। उसे वो संभाल के रखती है। और उस घर में कोई बड़ा लामा आए तो वो कफन उस लामा को पेश करके उस पर फिर पूजा आचरण कराते हैं। ये विजडम है लद्दाख का। वी फेस डेथ इन एडवांस, एवरी मोमेंट इज डेथ। अभी जब से आपने मेरे इंटरव्यू ले अभी तक मैं मरता गया। I was dying each moment, I was living each moment, I was dying each moment, and we cannot bring this time back what we spent. ये लद्दाख का अवेयरनेस है। और जब ये मैंने पहली बार, जब मैंने ये ठीक तरह से सुना और देखा, I was shocked and I felt how rich we are. तो ये लद्दाख के शादी का एक खास ट्रेडिशन है। अभी ये मॉडर्न जमाने में थोड़ा खराब हो गया, लेकिन अभी भी गांव में ये ट्रेडिशन बिल्कुल जिंदा है। यू कैन कम एंड चेक इट। So is there any conflict of from the new generation? Do you have any conflict? That's what I want to know, because अगर हम feminist perspective से लेके तो हम इसको support नहीं करते हैं कि लड़की की शादी हो रही है, ब्याही जा रही है, तो डोली जा रही है, तो आप तुम्हारी वहां से मतलब अर्थी निकले। तो some feminist scholars and especially they don't subscribe to this. But do you face some kind of conflict with the new changing world order, changing scenario, या वहाँ का जो लद्दाखी नया जो जनरेशन है, सिंस आप इतने सीनियर हैं, सो व्हाट डू यू फील, इज देयर दैट कॉन्फ्लिक्ट? मैडम, एक कॉन्फ्लिक्ट है। ये तो हमारे बच्चियों की और हमारे बदनसीबी है कि हम कफन लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि कफन लेके जाना तो बहादुरी का निशान है, वो तो विजडम का निशान है, वो तो ज्ञान का निशान है। तो ये तो हमारी बदनसीबी है कि ये कम हो रहा है। लेकिन फैक्ट ये है कि मॉडर्न जमाने में अगर डिवोर्स भी होता है, लड़कियां अभी चैलेंज भी करती है। मेरी अपनी बेटी है, शी इज ए स्टूडेंट डॉक्टर, तो वो मेरे से रोज रिवोल्ट करती है, क्योंकि लाइफ के साथ चेंजेस आ रहा है। लेकिन हमारी ये कम नसीबी है कि हम में कफन पहनने का हम में हिम्मत नहीं है। कफन पहनने की तो हिम्मत है, जैसे हिम्मत होना चाहिए इसके लिए। तो मैं आई मीन आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। मैं इसको थोड़ा सा, हो सकता है मैं गलत इसको समझ रही हूँ कि मौत को ही एक अल्टीमेट रियलिटी माना जाता है। एंड लाइक यू वेरी ब्यूटिफुली सेड दैट कि जो चीज अभी जैसे आपने जो बोला वो गुजर गया, तो हम सिर्फ मौत की तरफ जा रहे हैं, और मौत को एक अंत नहीं समझा जाता है, उसको एक अल्टीमेट रियलिटी समझी जाती है। दैट इज व्हाट यू प्रिपेयर योरसेल्फ, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड।
तो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या ये आपके फोक ट्रेडिशन में भी इसको हर तरह से इम्प्लाई किया जाता है? जैसे कुछ ट्रेडिशंस में जब कोई एजेड पर्सन उनकी डेथ होती है तो उसे गम का नहीं माना जाता, उसे खुशी की, अल्टीमेटली दैट पर्सन हैज फाउंड सोलेज। तो किस तरह से मतलब मौत के जो रिचुअल्स होते हैं या उसमें उसको किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है या कैसे, सिंस आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। आपने मैडम, ये तो बहुत, मैं एक लॉजिकल ही बात करूंगा। तो कोई जवान गुजर जाए तो नेचुरली आपको दुख होता है ना। जी लेकिन जी कोई बुजुर्ग गुजरे तो बिल्कुल दुखी नहीं होते हैं। जी। लेकिन लद्दाख के फोक में, लद्दाख के जनरेशन में, ऑलमोस्ट एवरी मोमेंट इज अ बर्थ, एवरी मोमेंट इज डेथ। हर पल ये उत्पन्न होता है, हर पल ये नष्ट होता है। लाइफ इज वेरी मोमेंट्री। बल्कि एक सांस लेने और एक सांस छोड़ने में जिंदगी है। ये एक सिलसिला है। हम एक सांस लेते हैं, एक सांस छोड़ते हैं, यही सिलसिला जब खत्म होता है मौत हो जाता है। ये सटलेस्ट फॉर्म में है। लेकिन लद्दाख में ऐसा अवेयरनेस है, जबरदस्त अवेयरनेस है लद्दाखियों में। कंप्लेन नहीं करते हैं और हम जिंदगी को ऐसे एक्सेप्ट करते हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है। एज ए लद्दाख एज ए होल, वी आर क्वाइट नेचुरल, वी आर वेरी नेचुरल। Sir, since we are coming to the end of this, but before that, I would want you to, through your music, just convey some folk tradition or something through music. आप कुछ गुनगुना के हमको सुनाएं, which could be the message from Ladakh to the entire, the participants here, जिनको आप कोई मैसेज देना चाहें अपने फोक अच्छा, सॉन्ग के तौर पे के थ्रू। देखिए, लाइफ में टाइम, एवरी टाइम इज डिफरेंट, तो आज जो हुआ यही होना था। दिस वाज द नेचर। इट कुड हैव बीन मच डीपर, इट कुड हैव बीन मच शैलो। जो हुआ एज इट इज था। टू स्टार्ट विद, आई एम नॉट ए फोक सिंगर एट ऑल, बिकॉज व्हेन आई वाज यंग आई वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय रेडियो स्टेशन। मैं गाने सुनता था फिल्मों का। So I have all the influence of O.P. Nair and S.D. Burman and all this filmy song, वो मेरे अंदर बसा हुआ है। And I'm very poor folk singer. I'm not at all a folk singer. 2-3 गाना folk का आता है, एक तो मैंने आपको पहले सुना ही दिया। लद्दाखी folk is वो folk वाले ही गा सकते हैं, मैं folk गा नहीं सकता हूँ, which is very true. तो नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो मैं एक फोक सिंगर को साथ रखूंगा अपने साथ। श्योर। लेकिन मैडम, मैं एक हिंदी इन्फ्लुएंस का गाना आपको सुनाना चाहता हूँ, जो लोग हिंदी समझते हैं। सो आई एम द रेजिमेंटल सिंगर फॉर लद्दाख स्काउट्स। लद्दाख स्काउट हिंदुस्तान के एक फौज का एक टोली है, तो उसमें मैंने गाना बनाया मैडम। तो वो गाने का मैं मुखड़ा सुनाना चाहता हूँ, तो विच इज वेरी पॉपुलर एंड दे। और मुझे लेट जनरल बिपिन रावत ने मुझे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का उसका वो क्या बोलते हैं तगमा वगैरह दिया है। तो वो मैं थोड़ा सा गुनगुना सकता हूँ। बाकी फोक में नहीं गुनगुना सकता। मॉडर्न गाने में गुनगुना सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे अंदर जमा हुआ है ना। नहीं सर, आई एम जो आप आई आप एम जो इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदी सॉन्ग्स, वो भी राग पहाड़ी का। आई एम लिमिटेड। तो फोक में मैडम, आई डोंट हैव फोक टैलेंट एट ऑल ऑफ सिंगिंग। फोक डांस आई कैन डांस, बिकॉज वहाँ वर्ड नहीं है। तो folk singing, I'm sorry, I cannot sing any Sir, authentic folk song. it's all right. Sir, there is one question coming. Can we take that question? One Yes, last please, please, question. please, please, Yeah, please, please. this is from Jyotsna. She's asking, sorry, just a minute. I think she's asking, how much of animal kingdom or images from the animal world find place or context in the language of Ladakhi music, folk music? She's asking how much of animal kingdom or images from the animal world find place or context in the language of Ladakhi folk music. Did you get the question or should I explain? Yes, I got the question. Yeah. Yes, yes. How much? या जैसे कुछ टेक्स्ट में वानर सेना है तो उसमें मंकीज का है, कहीं पे डियर का जिक्र है, कहीं पे मृगनैनी इस तरह का। सो हाउ मच डू वी हैव
the animal kingdom depicted in Ladakhi folk music, या कुछ ऐसा कोई म्यूजिक है या कोई ऐसा folk tradition है जिसमें animals का representation होता है? This is a very vital question. Thank you. ज्योत्सना। Because हाँ, ज्योत्सना जी, आपके सवाल में बिल्कुल दम है. हमारे folk songs में we talk about yak, mainly yak. We talk about horses. तो folk music में फ्लाइंग हॉर्स किसके बारे में बहुत अच्छा है. कौन सा जो घोड़ा अच्छा होता है या तीर अंदाजी कैसे होता है, वो है. हमारे यहाँ बंदर हाथी का नहीं है, क्योंकि बंदर हाथी हमारे लोगों ने देखा ही नहीं. जो देखा है उसको हम लोग बिल्कुल यूज करते हैं. जो कि हमारे केसर सागा है, इपिक, उसमें केसर का जो घोड़ा है उस पे बहुत गाने होते हैं. घोड़ा में ये क्वालिटी होना चाहिए, घोड़े में ये क्वालिटी होना चाहिए, घोड़ा ऐसे उड़ सकता है, घोड़ा ऐसे भाग सकता है, इस किस्म के गाने हैं बिल्कुल. एंड याक का होता है, बैल का होता है, गाय का होता है, बकरी का होता है, ऑल एनिमल्स. इवन फिश का भी होता है, कंपैशनेट फिश का होता है, कंपैशनेट लाइन का होता है. कोई कोई लाइन ऐसे आदमी को अटैक नहीं करता, उसमें कंपैशन होता है. तो ऐसे स्टोरीज हैं. यस. याक डांस भी करते हैं हम लोग. वी डू याक डांस ऑल्सो. बट वो लोग अभी मॉडर्न हो गए. लेकिन देयर आर मेनी फोक सॉन्ग मेनली अबाउट हॉर्सेस के बारे में होता है. जी हाँ. Okay, thank you, sir. I'll just check if we have any more questions before we go to your the song that you were going to. आप कुछ हम लोग को सुनाना चाह रहे थे, सर? जी हाँ, मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ. सर, ये इस गाने के पीछे थोड़ा सा भूमिका बांधना चाहता हूँ. आज से 300 साल पहले हमारे लद्दाख के राजा ने स्कर्दो पे अटैक किया था. स्कर्दो इज ए मुस्लिम एरिया which is now in Pakistan. So the Ladakhi Raja, he lost the war and he was captured. But in the process, the Muslim king was very intelligent. He has a lot of wisdom. उसने अपनी बेटी की शादी कराया एक मुस्लिम रानी से. तो लद्दाख का जो हमारा जो नस्ल है, वो एक किंग, बुद्धिस्ट किंग और एक मुस्लिम क्वीन के हम लोग नस्ल हैं. इसको बोलते हैं नस्ल जामयांग नमग्याल और ग्याल खातून. जामयांग नमग्याल राजा का नाम है, ग्याल खातून उस मुस्लिम क्वीन का नाम है. तो हम वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ मुस्लिम एंड ब्लड वाइज. तो इसमें मैंने गाना बनाया है, ये लद्दाख स्कॉट्स के ऊपर है. जिंदा कौम, लद्दाख एक जिंदा कौम है, मरा हुआ नहीं है. जिंदा कौम के जिंदा दिली के हम है निशान. अरे हम से सुन लो हमारी जुबानी, हमारी दास्तां. हम हैं लद्दाख स्काउट्स के नौजवान. अरे पी के, हाँ पी के सिंध के पानी को हम सियाचन पे इतराते हैं. दुनिया के सबसे ऊंची बर्फीली रणभूमि पे हर आफत से टकराते हैं. हम नस्ले जमयंग नमग्याल व ग्याल खातून हैं. हम नस्ले जमयंग नमग्याल व ग्याल खातून हैं. हम सिंगे नमग्याल तख्त संघर्ष पे करगुत हैं. जय जय हिंद हो. और मजे की बात यह है मैडम, 300 साल पहले हम छोरबाद ला बोल के एक जगह, वहां पे हम जंग हारे थे तब के मुस्लिम राजा से. लेकिन ऑपरेशन विजय में उसी जगह पे हमारे लद्दाख ने पाकिस्तान को हराया था, अभी तुर्तुक वगैरह में, इसमें. तो दैट्स आवर हिस्ट्री. तो आई एम वेरी हैप्पी आप लोगों ने मुझे मौका दिया. और मैंने एक लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत मुझे लग रहा है रेलेवेंट है, इसलिए मैं आपसे ये पूछूंगी. ये निवृत्ति लखंडे जी हैं, ये पूछ रही हैं, वर्तमान में आपके यहाँ की लोक कलाओं के सम्मुख कौन कौन सी समस्याएं हैं? वर्तमान में आपके यहाँ की लोक कलाओं के सम्मुख कौन कौन सी समस्याएं? आई थिंक इट इज द सेम क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड इन अ डिफरेंट वे, कि जो प्रेजेंट सिनेरियो में जो आपकी लोक कलाएं हैं, उनके क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं प्रेजेंट सिनेरियो में? और सबसे पहले तो
Rosie The Sinha, Lokhande ji is a female or a male, Lokhande? Nivrutti Lokhande. I assume she's a female, but the question is very relevant. Can she hear me? She can hear me, right? Yes. Of course, they all can hear you. My They are Lokhande sending. beta. They are sending their responses. I'll just give. I'm a Vipassana meditator in Bombay. One Lokhande ji was my spiritual father. एक लोखंडे जी थे महाराष्ट्र में, बॉम्बे में. वो लोखंडे जी के साथ मैं सोता था, बैठता था. ही इज ए न्यू बुद्धिस्ट. तो लोखंडे जी प्रणाम. यू आर माय फैमिली. ऐसा है बेटा लोखंडे जी. चैलेंजेस तो डेफिनेटली है, बहुत चैलेंजेस है कि नए जमाने के हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है. जब से टूरिस्ट आया, नए नए मनी हैज बिकम द न्यू गॉड. लोगों के वैल्यूज चेंज हो रहा है. वही तो हम लड़ रहे हैं. जैसे मैं अपने बात बताऊंगा लोखंडे जी, सुनिए. मैं महाराष्ट्र में आया तो मुझे बॉम्बे में शादी के लिए हर किस्म की लड़कियां मिली, लेकिन मैंने लद्दाख में ही शादी किया. नहीं तो मैं थोड़ा सा छोटा सा हमारा जगह हम डायलिट हो जाते. ऐसे चैलेंजेस बहुत हैं यहाँ. अभी हमारे पढ़े लिखे बच्चे महाराष्ट्र में शादी करते हैं, यहाँ करते हैं, कोई अमेरिका में जीते हैं. मॉडर्न जमाने की जो गलत चीजें आ रही है, लेकिन हम अपने वैल्यूज को इस चैलेंज में एक्सेप्ट करके कर रहे हैं. यस, वही मेरा गाना है ना, ABC सीखो काका मत छोड़ो. बिजनेस करो अपना एंटिक मत बेचो. रॉकेट डांस करो लेकिन फोक डांस मत छोड़ो. ये गाना मैंने 40 साल पहले बनाया. ये चैलेंजेस इट इज स्टेयरिंग इनटू आवर फेस एवरी डे. और ऊपर से हमें लोखंडे जी सुनिए, हमें नीचे से बहुत सनातनी आके हमको लाल पीला करने के लिए रोज तुले रहते हैं. Sir, I would love to share, अगर आपकी इजाजत हो, before concluding, I would love to share some reactions coming from the participants. I'll just read. Rashi Mishra ji is saying, wow, awesome. And this is Rosie Sinha ji. She's saying, thank you, sir, for that extremely soulful rendition. This is about the song that you just hummed for us. Then कोई है वो कह रहे हैं बहुत सुंदर. Then तारा जी हैं जिनको आप देख भी सकते हैं. She's saying absolute honor to listen to you, sir. और निवृत्ति जी ने बता दिया है कि वो मेल है और वो महाराष्ट्र से. So he's revealed his gender. He is male. And he says, जी sir, हम सम दुखी हैं. He said that. He's writing that. So there are many reactions coming. They are all very happy. Thank you, sir, for the extremely soulful rendition. और बहुत सारे reactions आ रहे हैं. So सर, आप कुछ कहना चाहेंगे या कुछ मैं ये कहना चाहूंगा मैडम डॉक्टर सईद, मैं नेक्स्ट आपको 5-6 दिन में सबका नाम लद्दाखी में ट्रांसलेट करूंगा. अभी तारा जी, मैं आपको एक बात बता दूं. हमारे यहाँ तारा को डोलमा बोलते हैं. एग्जैक्टली डोलमा. दैट्स माय डॉटर्स नेम. तारा में डोलमा. तारा हम इस ऊपर वाले तारा को नहीं बोलते हैं. जो किसी को दुख से सुख की ओर तार देता है उसको हम तारा बोलते हैं. ब्यूटीफुल. सुख से जो दुखी है उसको सुख की ओर जब हम निकाल देते हैं उसको तारा बोलते हैं. और सेकंडली में गिरीश्वर मिश्रा जी का मैं देखा. गिरीश्वर को बोलते हैं एडवाइजर लद्दाख में. मिश्रा होता है जो मिक्स होता है ना. इसी तरह आनंद प्रकाश का है गवाह. और तो मैंने सबका नाम यहाँ किया है. राधे वल्लभ त्रिपाठी का भी नाम मैंने सबका राधे वल्लभ त्रिपाठी सबका किया है. बट आई सेंड दिस टू यू. टाइप करके मैं आपको भेजूंगा बिकॉज आई वांट टू हुक यू ऑल टू लद्दाख. यस. और सुनिए, और सारे स्कॉलर्स लद्दाख जरूर आइए. अगर आप लोग सईदा जी के थ्रू आएंगे तो वी कैन डू एन इवेंट हियर which will cost you minimum money, because मैं पैसा नहीं कमाता हूँ, मैं गुडनेस कमाता हूँ. मैं दुनिया में कि अच्छे आप लोग लद्दाख आइए है. We will do an event. I will definitely share your email ID with all the participants because they are all asking for your they are asking कि आपका हम एड्रेस वरुण जी, क्या थोड़ी देर के लिए तारा जी को अनम्यूट किया जा सकता है? I think we just have last 2 minutes quickly before I give my official vote of thanks. Varun ji, can you unmute Tara ji? Is it possible? Let me ask my technical team, Tara ji. Sure. Yeah, I think we can hear you. Please go ahead. Am I audible, Professor Zaira? Yes, Tara, I can Thank hear you so much. Sir, it's an honor to hear quickly. you.
I am also from the mountains. I am from Kinnaur, sir. I'm sure you have heard of my valley. So whatever tribal folk traditions you were actually talking about, they're very much similar to our culture as well. And there are two of the queries, wherein I think Jyotsna was asking about. We have a festival called Losar, in Yes. which we make pho. We call it pho. And pho is like animals, they're all animals in the respect of animals for the prosperity. Just wanted to add on to that, Professor Zahra. And sir, an absolute honor again to listen to you. Thank you, you. Taraji. Taraji, And we call that ceremonial robe, which is white in color. Khatak. We call it khatak. So Yes, we Khatak. have it. Yeah. So Yes, cultures of mountains, they transcend boundaries. They are all same. Okay. Thank you so much, sir. Thank you, beta. And my name is, again, I am coming on to the name. We have a very interesting tradition, I am from the mountains again, and I'm from the Himachal mountains. So we have Hindi as a very, very lingua franca, I would say, in official zones. But we are, again, having our dialects, just like sir has Bhoti, as language. And Bhoti is in our scriptures. And we are all born with Buddhist name. Like, for example, my name is Sasha Karma Youngson, but I am Tara in Youngson is Saraswati again. papers. Yes, sir. And we have a meaning, of course, to our Buddhist names. Each one of us are blessed with two names. This is Khatak here, karma for you. Thank you so much, how sir. sweet. Khatak for you, okay. Honored, sir. Thank you so much. Thank you I so want much to for tell coming one here. thing to all the participants. Dr. Said, everyone. Yes, please, I you want can to explain conclude. one thing. Suniye, Yes, please, quickly. Our next किसी भूखे के सामने खाना रखो तो उससे खाया नहीं जाता है ना, कई दिनों का भूखा होता है. आज मेरा वही स्थिति, मुझे एक्सप्रेशन अंदर इतना है कि मैं बौखला गया हूँ, फिर भी मैंने समझा रखा. आप बिल्कुल flawless थे, sir. आप बिल्कुल flawless. Thank you very much. And thank you, Professor Zahra, for giving me time to talk. You're welcome. Dr. Rashi Mishra. Rashi Mishra, Jai Hind. I can see Rashi Mishra also. Wonderful. Beautiful. Okay, sir. Because our next participant, Nandini Sahuji, Professor Nandini Sahuji has joined. जिनके भी नाम का आपने कुछ explanation. नंदिनी साहू का मैंने बताया था. Nandini is a woman is visually delightful woman. Yes, I'm sure if she's listening, she'll be delighted indeed to listen to the explanation that you have given. It was a wonderful, a very pure. मैं इस session को before because we have to, I have to give an official vote of thanks. So on behalf of all the participants and on behalf of IQAC coordinator Professor Vinita Tuli and the co-convener Professor Anjali Gupta and my entire team. And sir, we have a very huge team. You can only see me, but there's a huge team. We have a huge technical team that has been helping us. Mr. Barun, Dr. Barun Jha was in charge at present. And on behalf of my principal, Professor Gyantosh Kumar Jha, who made all this possible. It is all his efforts and his concern that we should have people and folk tradition from all over the country, and that was the reason that he insisted on someone from Ladakh and Jammu Kashmir. You were there, and I thank you, Phonsok ji, for taking us. हमें ऐसा लग रहा था कि हम वाकई लद्दाख की वादियों में पहुंच गए हैं, and thank you for your extremely pure, जैसे पहाड़ों की हवा प्योर होती वैसे ही आपने एक प्योर और एक अनएडिटेड ज्ञान और अनएडिटेड नॉलेज जो हम तक पहुंचाई है. और हमें लगता है इससे हम एकेडमिशियंस को सीखने का मौका मिला कि हम कैसे कई जो आपने आई मीन माय टेक अवे वुड बी दैट माय ओन इंट्रोस्पेक्शन. आई हैव टू अंडरस्टैंड माय सेल्फ एंड देन ओनली आई कैन गिव. So I think that is what I take away from this session of yours. And on behalf of all the participants, once again, I'd like to thank you for joining us and taking time out, because I know your schedule, your activities, your spiritual activity, your other engagements. But despite all that, you could take time out and give us so much of time. Thank you, sir. I just want to show you River Indus from my window. Please see. How beautiful. I'm sure our participants are going to be delighted. Just see River Indus, please. Yes, please. Oh, beautiful. Can you see River Indus there? Yes, of course. It's coming from Tibet, and from here it's going to Pakistan slowly like this.
And please see the Beautiful. mountain range from my room. You must Beautiful. all come to Ladakh. I'm sure I'm going to share your email ID and you're going to have a Yes. lot of guests coming to your Yeah. place. Thank you, Please sir. come to Ladakh. Thank you, sir. और Thank ये you. लद्दाख देखिए visually this is small, है ना? And this is the girl who was helping me, my spiritual Yes, daughter. thank you, very much. Hakima. Thank you so much. Thank Jai you. Hind, Jai Hind, Jai Hind. Thank Jai you very Hind, much. Jai Hind, Jai Hind. Thank Jai you. Hind. Thank you very much. Jule. Jule, Jule, Jule. Thank you. Jule Chamala. Tara Jule. Thank you.